experience actually? How did you manage to get on those societal expectations? Very honest, heart to heart, huh? कि जब हम मतलब कि warm greetings to all our viewers. I, MD Kamar Alam, welcomes you all to the Eminence 2.0, the amazing podcast series on personality development cell Evolve of Shahid Bhagat Singh Evening College, University of Delhi. Today we are having Mr. Rahul Menon on our podcast, an academic specialist, a dynamic public speaker, and a seasoned in the model United Nation with years of experience shaping young minds and empowering individuals to discover their potential. Even I am the one of them. So Mr. Menon has been the guidance for those seeking to excel both the personal and professional spheres. So today we will be diving into the fascinating world of personality development, what it really means, how it matters the most, and we will also explore that how something like Model United Nation can be a game changer or for building skills like communication, leadership, and empathy. Whether you are a student, a professional, or just someone who want to grow a little every day, there is something here for you. So first of all, welcome, sir. Welcome to the Thank podcast series. thank you so much. So, sir, starting with the questions. First of all, about your journey. How did your journey begin, and what inspired you to pursue these diverse field? Right. Sometimes you come up like an influencer. Sometimes you come up like a traveler, a blogger, and sometimes you also a mentor. So, as I'm following you on the social media, so Right. First and foremost, thank you so much for having me on board. I have been saying yes to a lot of podcasts these days. So पहले मैं इनको मतलब these podcasts and these conversations used to be only privy to my team members. But then अब मेरे को ऐसा लगता है that if in case this can go across to students and they can also learn something maybe from it. When we talk about my journey, I have been very finicky here in terms of what I have been doing and what I've been wanting to do. So I started off, I've been a very good student all my life. I went to Kirodimal as my Delhi University college studying political sciences. But post that, I thought, ki, let me also try finance and economics. And maybe how would that work? On masters, so you can go across and pursue it in whichever field you want to. So I picked that up. And then I went purely into investment banking. During that time, Model UN, public speaking, debates पे जाना, schools को consult करना. I've been training schools and colleges when I was in class 10th मैं तब से कर रहा हूँ. Started off not मैंने अपने स्कूल में शुरू भी नहीं किया था. I was invited to a different school or a college. They saw me and they said, why don't you come to our school अगर आपका school नहीं करा रहा तो. And I remember going there, being paid a very small amount of money, which did not even cover मेरा आना जाना. But I said, अरे there is money coming in. But the one thing I felt, if in case you don't mind me calling you Alam, the one thing that I felt really well was one student coming upon to me in grade 12th after the session that भाई सच में are you in 10th? मैंने कहा हाँ भैया I am in 10th. And calling him भैया, then he's calling me sir. And I felt very empowered. अब ये ना कई बार सर पे भी चढ़ जाती है बात. अच्छा इतना empowerment. And that is where I felt कि एक second, can I make it better? So I started learning it, and then investment banking karte karte, I worked with HDFC, then Standard Chartered, and then I moved into school training. In 2017, Alam ji, मैंने छोड़ दिया banking, and I was consulting some clients, merger acquisition वगैरह में help कर रहा था. And then I moved completely into training schools and colleges. फिर मेरा profile में change हुआ. I was a part of a UN challenge setup which I won, where I got awarded. Then I was also invited to be one of the speakers at the G20 W20 meet. मेरे को फिर दिखा मेरा profile उस तरीके से आगे जाता हुआ. And you were very kind with your words while you were doing a backdoor discussion abhi ki you saw me somewhere, then you had a discussion with someone, and that somebody told you to call us someone. You see, इतनी ambiguity के बीच में से मैं निकल के आता हूँ. Who wants to travel, teach, and also get understanding about how you have one life. There is no Mario का mushroom that you can eat and come back. तो इसी में करना है जो करना है. And इसीलिए मेरा Instagram पेज वैसा है.
I have never tried to look towards the fact that भाई if I'm putting up content it should reach some, नहीं. I like the content I put it. तो educational भी होता है, travel भी होता है. So if in case I put in one word, Mr. Alam, I like to travel through different spirits and souls so that my different roles can be seen in different models, and I try to model those roles so those particular souls can grow and become better. That's what I try to do. That's the reason it's all a roller Indeed, coaster. sir. Indeed, sir. You have very briefly and broadly you have explained the idea of diverse career. Means a person could not only or should not. A person should not only focus on a particular thing to settle up and to pursue a particular career, but instead of that, he should follow some other path too, uh, just to get some kind of exposure and some kind of knowledge, and it also matters the most. So my second question would be, sir, how you came into the this field of Model United Nation, and you started giving this sessions, and you started preaching people about Model United Nation and the diplomacy. How you came into the field of diplomacy, the leadership, and this? बहुत अतरंगी कहानी है. So usually people go to different nice events and conferences and they see other people going up on the stage and they feel that हम भी करेंगे. मेरा सिनेरियो बहुत डिफरेंट था. मैंने कॉन्सेप्ट पब्लिक स्पीकिंग को शुरू किया था फ्रॉम अ वर्ड और अ टर्म आई एम गोना यूज राइट नाउ. मैं पहले जलील हुआ था by being on the public speaking floor, रिडिक्यूल हुआ था, एंड देन आई रियलाइज्ड कि कोई तो पावर और चार्म है इस चीज में. तो फोर्थ ग्रेड में वी स्टार्टेड ना स्कूल में स्पीच ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे, स्टेज पे जाओ बातें करो. सो लॉट ऑफ टाइम स्पीच टाइम नहीं मिलता था रेडी करने का, एंड फ्रॉम देयर वी यूज्ड टू हैव यूथ एनक्लेव्स आलम. तो यूथ एनक्लेव्स में दे वांटेड टू हैव अ सेट टाइमिंग, उसी में ही बोलना है. दैट रियली इंट्रीग्ड मी कि यार वो 2 मिनट के अंदर अंदर मैं कैसे इंपैक्ट बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए, टाइम चाहिए ना. जैसे आपने मुझसे बात करने के पहले एक बैकडोर डिस्कशन किया था कि सर Mhm. हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, यू इन्फ्लुएंस द राइट काइंड ऑफ पीपल, गुड, नाइस, वेरी वेरी नाइस टू नो. बट उसमें हमारे पास कॉन्टेक्स्ट था. तो जब मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला एंड ऑन स्पॉट चीजें करनी पड़ी, मेरे को यार आराम बहुत मजा आया. आई रियली फाइंड इट वेरी चैलेंजिंग कि मेरे को ऑन स्पॉट टॉपिक दे दिया एंड मुझे ना उसी वक्त अपने ब्रेन को एम्पावर करना है. एंड आई डोंट नो आलम, यू माइट फील दैट सर थोड़ा सा क्रेजी साउंड कर रहा है जो आप बोल रहे हो, लेकिन आलम मुझे वो क्रेजी नहीं लगता, मुझे वो क्रिएटिव लगता है कि जब योर हार्ट इज बीटिंग अ लिटिल मोर देन रिक्वायर्ड एंड व्हेन योर ईयर इज गेटिंग रेड एंड बहुत गर्मी लगनी शुरू हो रही है स्टेज पे, तब समझ लो आप कुछ सच में सही कर रहे हो. क्योंकि एंड दैट्स वेरी. Indeed. फिर स्कूल लेवल पे स्टार्ट गोइंग टू इवेंट्स, कॉलेज लेवल पे स्टार्ट गोइंग टू इवेंट्स, एंड आई सॉ मॉडल इवन फ्रॉम वेरी क्लोज स्ट्रक्चर दैट अच्छा एज का कोई बार नहीं है. हेंस आई ऑलवेज यूज अ टर्म आलम व्हिच इज कॉल्ड इंटेलेक्ट हैज नो एज. एमयूएन में कोई एज का बार थोड़ी है. एक 6th क्लास का बच्चा और एक 12th क्लास का बच्चा, एक 12th क्लास का बच्चा और 4th ईयर का लॉ का बच्चा उस रूम में हो सकता है, एंड दे विल डिबेट. एंड दैट इज वेयर आई फील दैट आप ज्यादा इंप्रूव कर पा रहे हो, इम्प्रोवाइज कर पा रहे हो, इंप्लीमेंट कर पा रहे हो. So if you're improving, improvising, and implementing, you are an intellect. This is the 4I Indeed. principle that I always follow. Improvising, you're improving, implementing, and you are an intellect then at the end of the day. That's what intrigued me. That's where the journey started. From the youth enclaves, from getting ridiculed on the stage ki bro तेरे को speech आती भी है तो बोल भी पाएगा, there are so many difficult English words, will you be able to say it or not. And that is where I think I took certain things to my heart, and उस समय ego क्या है नहीं पता था, but it just felt bad that why can't I do it. And model events में जो challenges आते थे that you're not able to answer the delegates. 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक तो आलम I did not even get a single award doing any conferences. जाओ घर आओ, जाओ घर आओ, and रोना and not feeling better. But the one thing I made sure, I made notes in my committee. Every single thing was written on a piece of paper. What was told, what did I not know? And that's where I think the improvement started. That's how my model event journey predominantly started. Actually, sir, it's a quite impressive that actually when I also used to get on the stage, and when I have been asked to come up on the stage and just give a particular speech, then somewhat I also at some point of time I also start shivering, and that precipitation, that all fears which come in my mind. Okay, if क्या हो अगर मेरा अच्छा नहीं गया, what if I did very worst in that case? So my question will be, the next question will be ki, how do you actually counter this actual this fear,
that क्या होगा, people क्या, लोग क्या सोचेंगे, मेरा अच्छा गया कि नहीं गया. So what about this fear actually? Alam, I'll be very honest, मैं ना I've been a very talkative human being since the very beginning, okay? So ऐसा नहीं था कि मेरे को बोलना बोलना पसंद नहीं है या I am shying away from something, but I am also immune to one thing from the very beginning. If I try something and if I fail at it, I am okay accepting it. आजकल की जनरेशन को अगर आप देखोगे ना, बड़े इमेज कॉन्शियस लोग हैं. तो ऐसे स्टेज पे जाएंगे तो हम ना परफेक्टली कुछ करके आएंगे. तो लाइफ में हमने अपने आप को शाहरुख खान एस्टेब्लिश कर दिया है. हमने अभी से अपने आप को इन्फ्लुएंसर मान लिया है. वो तो आपने मेरे को आज बोला, Rahul sir, you are one of the influencers. I'm being very honest, Alam. If in case somebody looks at my Instagram, ना दिल से influencer का मतलब तो 100K फॉलोअर्स होने चाहिए थे. हैं आलम, उससे ज्यादा हैं. इट इज जस्ट दैट मैं इंस्टाग्राम पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ. आई वुड लाइक टू मीट दो 100K पीपल और 200K पीपल. आई वुड लाइक टू गो एंड बी कनेक्टेड टू देम. मेरे को चाहिए कि जिसको मैंने क्लास 5th में ट्रेन किया है कुछ दिन पहले, वन ऑफ दोस किड्स आई हैव बीन ट्रेनिंग सिंस क्लास 8th or 9th. दे हैव जस्ट क्रैक्ड अ कॉलेज इन लंडन. And I receive a small token from them. That's the kind of connection I like to make. तो बहुत शुरू से ना मेरे को था कि प्लीज लेट मी नो वेर आई एम रॉन्ग. मुझे जलालत और बेइज्जती से ऐसा कोई डर वर था नहीं कि ठीक है कोई बात नहीं, डिड नॉट वर्क फॉर मी. एंड आई एम ओके विद द फैक्ट दैट टुडे आई एम नॉट गुड, बट इट्स टुडे दैट आई एम नॉट गुड. And for that, there are two things I've always followed. I have never shied away, Alam, from making notes and carrying it to the stage with me. मैंने कभी अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोला है कि नहीं मैं तो नोट्स वोट्स कौन लेके जाता है. एकदम बढ़िया पब्लिक स्पीकर्स तो नोट्स लेके जाते ही नहीं है. I'm really sorry, but if in case if you've seen Mr. Shashi Tharoor going up on the Oxford stage, Indeed. he had a piece of paper in his hand. He had to have those facts. So the point is that why do I pressure my brain with small things? पहले तो मैं वो लेके जाऊंगा शीट. Second, I am a big believer in practicing inside my training court, and my training court is my brain. I would like to dress up my brain with the costliest information, the most toughest information, because that's the costly tuxedo I am wearing here. और मेरा सूट बाहर महंगा है कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने जो अंदर सूट पहना हुआ है वो बहुत महंगा है. For that, I will find information from all places, and I will try to keep Indeed. a record of it. So I was training. listening to your I was listening to your podcast, and you said ki, okay, when I attended my first MUN, or I attended a MUN and I was not having a particular suit, and because of that I was being heavily judged by the people, and they said ki, okay, the suit actually represents ki, okay, you are a delegate and you actually have something. So हाँ आलम साहब, ये सच्चाई है कॉन्फ्रेंस की. मतलब वहां पे ये लिखा हुआ था कि ड्रेस कोड में आपको सूट पहनकर आना है. और मेरे पास सूट नहीं था, तो आई कॉल्ड अप माय फ्रेंड. आई टोल्ड हिम, भाई मेरे को सूट चाहिए होगा एक, बिकॉज आई एम प्रिपेयर्ड. बट देन ठीक है, उनका प्रोटोकॉल है आलम, एंड आई एम ओके विद दैट. But then I also like one part where now comes a situation where certain events where I go to they ask me, sir, what size are you, so that we can let you know these are the colors we're available for you. And that is where Alam, a lot of time people ask me, when I said a yes to your podcast as well, couple of people at decent positions, they asked me, Rahul, it's an online podcast and it's from a college, and why? मैंने कहा, I like the theme that they have. ये मैंने पिछले पॉडकास्ट के लिए बोला था, the one which I did in भुवनेश्वर. उनका थीम बहुत अच्छा था. और पता है, जब आपने इनवाइट किया था उसके बीच में और अभी में कुछ 10-12 और भी इनवाइट्स हैं मेरे. उनमें से कुछ को मैंने मना किया बिकॉज उनका ना आइडियोलॉजी ही कुछ अलग है. तो आई सेड नहीं यार, वो मेरे को नहीं करना है, मेरे को ये करना है कुछ ऑफलाइन है. कल आई हैव अनदर वेबिनार टुमारो विद अनदर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज, जिनको मैंने हाँ बोला हुआ है. तो यू गेट माय पॉइंट आलम, दैट ये जो सूट है ना, ये जो सूट आप पहनते हो, ये जो इमेज आप क्रिएट करते हो, ये तब क्रिएट करो जब आपने एक्चुअली इनफ एक्सपोजर और नेटवर्क चेक कर लिया है व्हाट्स गोइंग अराउंड यू. एंड मेरे को वो चीज ओके था, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं है आज सूट तो नहीं है, बोरो कर लिया, आई एम ओके विद दैट. बट मेरी प्रिपरेशन फेल नहीं होनी चाहिए. And preparation should be done from the purpose of learning, not from the purpose of learning a fact that मैं जीतूंगा ही जीतूंगा. मुझे ये लर्न नहीं करना कि मैं कल जीतूंगा, मुझे ये जरूर लर्न करना है कि कल मैं परफॉर्म कर पाऊंगा. अगर वो लर्निंग क्लियर है तो मेरी लर्निंग क्लियर है. indeed, sir, as we have our the particular theme, or the most our motto, the motto of our society is personality development. So how do you actually feel this public speaking or this model United Nation? First of all, before going on that, we will be asking that it's the people who are unfamiliar with this concept of MUN. So in brief, if you want to explain the meaning and the workings of or the benefits of MUN,
So, Alam, I'll tell you two very clear benefits of a model UN. If in case you want to call it a model UN, you can always call it the mechanism of the United Nations. अब the United Nations is the only organization which is out there allowing everybody a common platform. आप हमारे सामने बात कर सकते हो. तो any country which is a third tier country, not very rich, can talk to a very very rich country as well and upfront बात कर सकते हो. Common platform है, allowing the student to understand what's going out in the world. For example, अगर आप NCERT पढ़ रहे हो, CBSE पढ़ रहे हो या आप केंशियन लॉ पढ़ रहे हो, आप मॉडल इवन के कमिटीज कर लोगे ना अगर आलम, इकोनॉमिक कमिटीज, पॉलिटिकल कमिटीज, बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है ऑफ द थिंग विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस. तो मेरा पहला पॉइंट है बियॉन्ड सिलेबस लर्निंग मॉडल यूएन में अगर मैकेनिज्म ऑफ यूएन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत अमेजिंग चीज है. दूसरी चीज, आई लव द फैक्ट दैट यू गो अक्रॉस एंड मीट पीपल हु आर बेटर देन यू. Indeed. Maybe they are better dressed, better equipped, better learned, better in their intellect, better in their personality, or they are better human beings than you are. ऐसा मिलेंगे आपको लोग, बिकॉज उस लॉट के अंदर ना सब लोग जीतने आते हैं. फिर आप लॉट करते हो तो यू आर एबल टू डू दिस. एंड एक बात बताना आलम, ये रोज कर रहे हो क्या आप? इज समवन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड डूइंग दीस टू थिंग्स एवरी डे अदर देन अ डिप्लोमेट, अदर देन मे बी समबडी इज अ ब्यूरोक्रेट? ये कौन कर रहा है रोज? हाँ, एज अ मेंटोर, एज एन एकेडमिक ट्रेनर मैं ये रोज कर रहा हूँ. और जब मैं ये रोज करता आ रहा हूँ ना तब मेरे को रियलाइज होता है दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर समवन. फॉर एग्जांपल आलम, आपको अगर मैं बोलता हूँ कि आपको ना एक स्टेज पे जाना है और 20 मिनट तक ना आपको एक छोटी चीज एक्सप्लेन करनी है लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी के साथ, उसमें स्टॉप नहीं, पॉज नहीं, रिपीटेशन नहीं, तो आलम आप भी ना प्रिपेयर करोगे, आप भी एक स्क्रिप्ट तैयार करने की कोशिश करोगे. एंड व्हाट इफ मैं वो स्क्रिप्ट चेंज कर दूं स्टेज पे चढ़ने के 2 मिनट पहले एंड आपका नाम वाम पोस्टर वोस्टर छप चुका है, तो आलम क्या बोलोगे? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा स्टेज पे. एंड इफ इन केस somebody has done model events और इंटरनेशनल डिबेट्स ऑफ दिस काइंड, वो स्टेज पे चढ़ेगा और बोलेगा कोई नहीं, आप टॉपिक कर दो. Indeed, the level of confidence they get through that particular sessions and all. I'll be very honest, मैंने हमेशा बोला है कॉन्फिडेंस इज अ मिथ. ये ना मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस सब मिथ्या है. पर्सनैलिटी डेवलप करनी है ना, द फर्स्ट थिंग a person needs to develop in their personality is the concept called reality. The second concept, awareness, and the third concept called what are you trying to do. Abbreviation निकालो तो abbreviation निकलता है RAW, RAW. You gotta be real. You need to have a very clear actuality of what's going on, and you need to know what am I supposed to do. As raw as you are, your personality is as beautiful as it can be. बिकॉज आप रियलिटी में जी रहे हो. तो अगर आप अवेयर हो आपके आसपास क्या चल रहा है, अगर आलम इज अवेयर, अभी आपकी डिस्कशन हो रही है अपनी टीम के साथ, राइट? ये करना है, ये करना है, ये करना है, टैब पे बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? कॉन्फिडेंट हो ना आप, तो करो जो मैं करना है. उसका कॉन्फिडेंस जब आया तब हम क्लियर हो जाते हैं. कॉन्फिडेंट नहीं, हम क्लियर हो रहे हैं पहले. इंडिविजुअल हु इज क्लियर will always come out as confident. He's not confident, she's not confident, they are aware कि I am in control. That's what the reality of personality is. And that's what we work as my team implementers that I say. That's where we also bring into the picture कि भाई हम कोई delusion, delulu is not the salulu वाला गेम नहीं है भाई. हमारा कोई delusion नहीं है, सच्चाई है. ये आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता, इतना करेंगे, ये रियलिटी चेक है आपके लिए, और अगर हमारे लिए तो हमको दे दो आप. That's how it is. Indeed, sir. The very next question was ki that how this MUN actually improves your personality development, and you very beautifully you explained the particular aspects. So I will be moving on the next. Actually, what are the biggest challenge according to you, as you are a mentor, right? We also are having some challenges in our particular career or in our life, in our colleges. What actually you believe are the biggest challenges of the young people who are actually facing today, and how they can actually cover them up, or how they can counter that particular challenges, right? As we are talking about personality development, so these are the actually fundamentals of the personality development, that you should be aware of the stress management and the stress taking. So how do you see this actually, how the challenges, and what are the biggest challenges according to you? देख आलम, यही रीजन था दैट आई हैड सेड अ यस टू दिस पॉडकास्ट, बिकॉज जो थीम आपने पकड़ा है ना, इस थीम में इस किस्म के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, ऑब्वियसली देन इट वाज अ गुड डिसीजन दैट आई सेड अ यस टू द पॉडकास्ट. मैं इसका आंसर दे रहा हूं. अब इसका आंसर ना आलम मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इसका आंसर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पर्सपेक्टिव, बड़े सारी चीजों में आ जाएगा. मैं अपना आंसर दे रहा हूं. मेरे हिसाब से all of us, including me, we are going through two different crises.
One is called an image crisis or identity हम्म, crisis, and the second is called a development crisis. हम्म, और इसको आईडी बोलते हैं। अब मैंने ये सोचा नहीं था कि इसको आईडी बोल दिया जाएगा, कि ये आपकी आइडेंटिटी ही बन रही है, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस और डेवलपमेंट क्राइसिस को मैं आईडी क्राइसिस बोलता हूं, विच इज कॉल्ड इमिनेंट डायरेक्शन क्राइसिस। इमिनेंट भी नहीं बोलूंगा, एक्चुअली इंप्लीमेंटेटिव डायरेक्शन क्राइसिस है हमारे लिए ये। क्यों, मैं बताता हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं किसी और इंडिविजुअल के साथ। ओके, दिस इज हाउ वी शुड ड्रेस अप, दिस इज हाउ वी शुड टॉक। मुझे किसी डेलीगेट ने बोला, मैं आई थिंक आईआईटी गया था एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए, पहला मेरा लेक्चर था फिर मेरा कॉन्फ्रेंस था। तो डेलीगेट ने मुझे सुना एंड दे सेड, सर आई हैव माय एम इन माय लाइफ, आई वांट टू स्पीक लाइक यू वन डे। एंड ऑन स्टेज मैंने बोल दिया था, यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक लाइक मी, you will never be able to speak like Alam or Garima or anybody in my team, because you'll be able to speak only like you. And one day somebody will hear you and would like to speak like you, and the answer will be they will never be able to speak like you, because you have to find your own way, your own path. सबका अपना तरीका होता है। तो हमें अपने आप को कभी भी किसी और इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के साथ मेजर नहीं करना चाहिए। हाँ, उनके स्किल्स के साथ मेजर करो। If Shashi Tharoor goes across and speaks brilliant, fluent, flawless English, English is the skill, not Mr. Tharoor. If Mr. हम्म, Menon goes across and explains things in beautiful abbreviations, so abbreviation creation is the skill, not Mr. Menon. If Alam is yes, a humble individual who remembers people from I don't know how long, kab mile the Ranchi mein, and he's still so respectful. So being respectful is the moral principle you should learn. Alam can teach you that, but you cannot be Alam. So that's one आइडेंटिटी क्राइसिस है। और वो इसीलिए आलम जी, क्योंकि हम इतना डरते हैं ना अपने आप को एक्सपोज करने से, कि नहीं मैं नहीं जा रहा स्टेज पे, ना 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 ना, ये मेरे को सामने से कुछ बोल देंगे, मेरा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। यार आने वाले 4 दिन खराब कर लो ना, इससे बेहतर है कि 40 साल आगे वाले खराब कर दो। आइडेंटिटी हम्म, क्राइसिस। दूसरा पॉइंट है मेरा, आपका डेवलपमेंट। आलम मेरे क्वेश्चन का आंसर कर यार, डेवलपमेंट एक पॉजिटिव टर्म है कि नेगेटिव टर्म है? पॉजिटिव। नहीं यार, डेवलपमेंट ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, चलो तेरे को समझाता हूँ क्यों। हाँ, डेवलपमेंट, इफ आई डेवलप फीवर आलम, अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है आलम, अगर मैं फीवर डेवलप नहीं करूंगा तो इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसी होगी मेरी? इवेंचुअली इम्यूनिटी को स्ट्रांग होने के लिए कहीं ना कहीं, हाँ, द स्माइल ऑन योर ओके, फेस, यार एक सेकंड, यही तो बात है। व्हाट इफ हाँ, आई एंड डेवलप अ न्यू स्किल आलम, लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं है उसको इंप्लीमेंट करने की, तो क्या मैं नेगेटिव हम्म, डेवलपमेंट? नहीं, मैं नहीं, पॉजिटिव डेवलपमेंट में हूं, लेकिन मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं। एंड दैट इज वेयर द यूथ स्टार्ट्स फीलिंग इम्पेशेंट, कि यार ये हम्म, डेवलपमेंट तो मैं डेवलप्ड हूँ, मेरे पास बड़े सारे स्किल है, मैं तो बड़े महंगे कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। नहीं, प्लेटफॉर्म है, आप वो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपने तरीके से, मत ढूंढो। लुक एट द डिफरेंट एरियाज जहां जहां आप ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, जो भी अवेलेबल है। यार आलम एक बात बता दें, तो आई शुड हैव आल्सो, I think Alam, I am at the position where I can say that I have certain things in my background of my CV, I've got a award from international organization, एक बार G20 हाँ जी, करूं, ऑल इंडिया रेडियो पे मेरा स्पीचेस जाते हैं, पॉडकास्ट बनाता हूँ, यू नो ट्रेनिंग सेमिनार वगैरह 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 एंड ऑल दैट। तो यार फिर मेरे को तो आई शुड डू ओनली द सेलिब्रिटी पॉडकास्ट्स, एंड आई शुड नॉट डू एनीथिंग एल्स। मेरे को तो नहीं जाना चाहिए डिफरेंट कॉलेजेस में। क्यों कर रहा हूं मैं ये? बिकॉज आई डोंट हैव एन आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या हो हम्म, जाएगा, मैं इकट्ठा यहाँ बैठ के बात कर लूंगा और ये चीज कहीं पहुंच जाएगी आलम एंड टीम के थ्रू, एंड वहां पे से 2 बच्चे निकल जाएंगे, उनमें से 2 बच्चे आईएफएस बन जाएंगे, और वो आलम को थैंक यू भेजेंगे, आलम को थैंक यू मेरे को भेज देगा। तो पर्पस ऑफ लाइफ तो मिला मेरे को यार थोड़ा सा। हाँ, वो एक दिया ना मैंने, आईडी बेटा आलम, इट्स वन इज सिंपल आईडी। इम्प्लीमेंटेशन का डायरेक्शन सही होना चाहिए, इसीलिए मेंटोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटोरिंग पार्ट में मैंने एक अब्रिविएशन दिया था आलम, यहाँ पे दे देता हूँ। मेंटोरिंग में MENTORING मेंटोरिंग होता है। तो अगर मैं ब्रेक करूं, हम्म, मेंट कौन है? द वन हु मेंशंस डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस अबाउट यू एंड गिव्स यू द रिसोर्सेज टू फुलफिल योर आइडियाज। मेंटोरिंग, बात खत्म। दैट्स व्हाट अ मेंटोर इज। अभी मैं गया था एक कॉलेज ड्यू में, किसी ने मुझसे पूछा, सर आप भी तो एक ऑलमोस्ट एक सेलिब्रिटी हो जो मेंटोरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उतने बड़े नहीं हो। मैंने कहा मेरे को उतना बड़ा बनना ही नहीं है यार। आई एम हैप्पी आलम दैट व्हेन आई गॉट अवॉर्डेड, तो मेरे पास एक ब्लू कलर का यूएन का बैज है जो मेरे को अवार्ड मिला था। आई एम हैप्पी विद द हम्म, ब्लू रादर देन अ ब्लू टिक ऑन माय इंस्टाग्राम। मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई। दैट्स वेयर मेंटोरिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड द कॉन्सेप्ट कॉल्ड आईडी कम्स इनटू पिक्चर। that's actually it's also my personal question, sir. कि बता बता। when we try to
कि जब हम मतलब कि थोड़ा सा अपने फियर को ओवरकम करने के लिए थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस, या कॉन्फिडेंस बोला जाए, हाँ कॉन्फिडेंस जब गैदर कर लेते हैं, एंड व्हेन वी ट्राई टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, राइट, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज लगी रहती है ना कि चलो हम एक्सट्रोवर्ट तो कर रहे हैं, कहीं ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कम तो नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं अपने क्लासेस में, जब टीचर से मेरे लेक्चर्स होते हैं, तो जब डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं, या कहीं पे डिबेट में अगर मैं गया, या कहीं पे एमयूएन्स में अटेंड कर रहा हूँ, तो जब डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं, तो मेरे माइंड में ये चीज लग रहा है कि कहीं ये जो लोग हैं, क्योंकि मैं सुनता आया हूँ, मेरे दोस्त लोग भी कहते हैं कि तू बहुत ज्यादा ओवर कर रहा है, ओवर स्मार्ट बन रहा है, राइट। सो वो चीज जो है ना, वो दिमाग में एक साइड में रह जाती है, जिसके कारण मैं, एक लिमिट लग जाता है मेरे ग्रोथ पे, एक टाइप से। डन। इसको सॉल्व कर दे आलम अभी। हाँ। सॉल्व कर देते हैं इसको। एवरीबडी आलम हैज अ मेटाबॉलिज्म, एवरीबडी हैज अ कैपेसिटी टू ईट फूड। हाँ। ग्रेजुअली आप लर्न कर लेते हो ना कि आप किस किस्म का खाना खा पा रहे हो और कितना खा पा रहे हो। हाँ। फोकस ऑन द टर्म ग्रेजुअली आलम। अगर आप आज 3 रोटी खाते हो लेकिन कल 4 फिर 5, आप इंक्रीज कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो। आई एम श्योर देर आर डेज आलम यू विल रियलाइज आज मैंने इतना खाया था एंड आई वाज फीलिंग ओके। आज मैंने इतना हम्म। खाया था नॉट फीलिंग ओके। प्रॉब्लम ये है ना आलम जी कि हम लोग अपने डेली रूटीन को मैप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम हम्म। उठे सुबह मस्त पार्क में वॉक कर रहे हैं लाइफ में और वापस आ जा रहे हैं। डेली रूटीन को मैप करना पड़ता है आलम। एंड दैट इज वेयर आप कई बार अगर एक्स्ट्रा बोल दे रहे हो या कम बोल दे रहे हो, उसको राशनिंग ऑफ आइडियाज बोला जाता है। ROI, राशनिंग ऑफ आइडियाज। ठीक है। अब राशनिंग करना पड़ेगा आलम कंपटीशन के हिसाब से। पर राशन करने के चक्कर में कम बोलना और ज्यादा बोलने का गेम नहीं है। गेम है कि आपको अपनी हम्म। पॉइंट रखना है, बट कंजम्पशन सामने वाले का चेक करना आपको आना पड़ेगा। एंड दैट इज वेयर मैं सबको बोलता हूं, अगर आप जितनी बार स्टेज पे जाते हो, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग अ प्रॉपर रिव्यू कि कहां हम्म। पे मैंने अपना लाइन क्रॉस किया। एंड आलम जी, रिव्यू पार्ट को सुनना, नॉट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, नॉट फ्रॉम योर पियर्स, बट यू नीड टू गेट अ रिव्यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन। बेशरम होके जाओ और पूछो, हाय माय नेम इज आलम, आई वाज अ पार्ट ऑफ द कंपटीशन सेटअप हियर। आपने मेरी स्पीच सुनी होगी, डू यू थिंक आई नीड टू फिक्स समथिंग? बिकॉज आलम, ये अज्यूम करके तो ठीक नहीं हो पाएगा। इफ यू आर ईटिंग अ पार्ट ऑफ फूड एंड वो आपको ओवर ईटिंग लग रहा है, तो आपको फील हो रहा है बिकॉज आप लिटरली कंज्यूम कर रहे हो उसको। लेकिन आपका हम्म। इंफॉर्मेशन कौन कंज्यूम कर रहा है आलम? सामने वाला। तो सामने वाला ओवर ईट कर रहा है, सामने वाले को लग रहा है कि उसने ज्यादा खा लिया है, गो टॉक टू दैट इंडिविजुअल। ये हम करते ही नहीं है। हम लोग इसी बात से झिझक रहे होते हैं, यार मैं कैसे पूछ लूं सामने वाले से जाके यार कि मैंने ज्यादा कि बोला मैं है क्या? कैसा था। तो हाँ, मेरे दोस्तों ने बोल दिया, मैंने मान लिया। अरे, तो दोस्तों के पास तो फ्रीडम है ना आपको थोड़ा जलीला जलीला थोड़ा सा रिडिक्यूल करने का कि ओ ब्रो कम ऑन यार। बट ओ ब्रो कम ऑन से लाइफ तो चलेगी नहीं ना। आई हैव ऑलवेज हाँ। मेंशन दिस, एवरीबडी हु टेक्स द स्टेज more numbers in their life, as many times you come up on the stage, you will never go of age. हम्म। जितनी बार स्टेज पे आओगे ना, उतना आपकी उम्र लंबी होती जाएगी, बिकॉज यू विल बी कनेक्टिंग विद पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस एंड उनका रिव्यू फीडबैक आपको मिलता रहेगा। ये सही था, हम्म। ये गलत था, ये सही था, ये गलत था। सबका जजमेंट पैरामीटर होता है आलम। तूने भी तो मेरे को हम्म। जज किया होगा। सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, हाँ। क्या जज किया यस आपने मेरे आलम? क्या क्या सर, जज कर रहे ऑब्वियसली एक आप में वो एक कैपेबिलिटी है जो सामने वाले से जो है, सबसे पहले तो आप कंफर्ट कर सकते हैं सामने वाले को, हो? ठीक। राइट, एंड द वे यू कन्वे योर अंडरस्टैंडिंग और योर मैसेज, दैट्स मतलब बहुत कम लोगों में वो मिलता है, एंड यू हैव योर ओन आइडेंटिटी सर, एक्चुअली। तो अब ये एक पॉजिटिव फीडबैक था। हम्म। मैं इसको सिर्फ फीडबैक की तरह लूंगा, ना अच्छा। पॉजिटिव हाँ। ना नेगेटिव। ओके ओके क्योंकि मैं ओके, इसको गॉट इट। पॉजिटिव, अगर मैं पॉजिटिव ले लिया तो मैं इंप्रूव नहीं करूंगा, और नेगेटिव ले हम्म। लिया इंप्रूव करने की शक्ति हम्म। नहीं बची, तो न्यूट्रली लूंगा। इंडीड। एंड देन आई इंडीड। गो बैक। Once APJ Abdul Kalam sir said that the strength and weaknesses of India, the strength of India is actually the 60 million youth, and the weakness of India is 60 million youth without a vision. करेक्ट। Today's youth, actually, they don't know that how to start or from where to start. They are actually, they all have been stuck in an initial phase where they are literally confused about their actual career or their actual start, that from where they should start. So what a piece of advice you will be giving to them? I I'm in no position to change the thought process what Mr. APJ Abdul Kalam has talked about. I have an additional
advice slash opinion on that thought. Our youth not only is missing out on the concept called vision, there are a lot of visionaries and youths out there. The biggest thing that they miss out are the three P's which they don't look at is patience, passion, and people. They don't have patience. I'll give you an example, Alam, from you and your team, Mohak and Shivang and everybody, how patiently you guys are making sure that whatever junctures are there, जो pauses आ रहे हैं, जो changes हो रहे हैं, आप लोग well prepared, articulated हो बिल्कुल कि ऐसे 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 करना है, मीटिंग का टाइम जोन क्या है, that's called patience. तो विजन आपके पास भी है, तुमको भी पता है कि मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था किसी ने, सर लेट्स डू दैट पर्टिकुलर पॉडकास्ट जहां पे ना इतने व्यूज और वो व्यूज हो जाएंगे. मैंने कहा मैं पहले ही बोल चुका हूँ, थीम बढ़िया होगा तो करूंगा, नहीं बढ़िया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. देयर आर इनफ पॉडकास्टर्स आउट देयर, तो आई एम ओके विद मी बीइंग माई सेल्फ एज एन एकेडमिशियन. तो मेरे लिए तो भैया सबसे पहले वो गेम था विच इज पीपल. इन योर केस ऑल्सो योर पीपल नो व्हाट दे आर डूइंग, विजन वहां पे भी है. पेशेंस जहां मिस हो गया ना आलम, because every single day, whatever you're doing, I will also give you a piece of advice on the additional advice of Mr. APJ Abdul Kalam is when you keep doing everything every day, you're not doing one particular thing that every single hour. You're trying to be at every place. If you're trying to be all over the place, you're not going to reach one particular place which you should be reaching. So when you dedicate your time on a daily basis on one thing, gradually the time starts taking care of you because you start becoming better at it. धीरे धीरे धीरे, वो धीरे है ना, वो धीरे धीरे मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स में निकल जाता है. पेशेंस डालना पड़ेगा. रातों रात ऐसा नहीं हो जाएगा कि यू बिकम द बेस्ट एट इट, बिकॉज देन यू नॉट बिकमिंग द बेस्ट एट इट, यू जस्ट बिकमिंग बेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वो सस्टेन नहीं हो पाएगा. सो दैट्स पेशेंस. सेकेंड इज योर पैशन. Anybody, everybody, somebody, someone, everyone must follow their passion like a crime, like criminally follow करो अपना passion, बिल्कुल मतलब crazy हो गए कि यार मेरे को ये करना है. मैं भी कर रहा था, full fledged banker, full fledged banking कर रहा हूँ, जा रहा हूँ ऑफिस, वापस आ रहा हूँ. लेकिन जब मैं वापस आ रहा था गाड़ी में, if a delegate used to call me, sir are you free now, मेरा कल कॉन्फ्रेंस है, can you speak for 15 minutes? हाँ जी, why not? एंड देन आई विल परस्यू अ पैशन. तो मैं वो समझा रहा हूँ उनको, ट्रेनिंग दे रहा हूँ ऑनलाइन, जैसे ही बैठ के दे दिया. मैंने कॉल पे भी ट्रेनिंग ली है आलम, ऑन कॉल 1 घंटा 60 मिनट्स ऑन कॉल, पॉइंट्स उठा रहे हैं, व्हाट्सएप शेयरिंग कर रहे हैं, वो भी किया है. पैशन. एंड देन पीपल, द राइट काइंड ऑफ पीपल, द पीपल हु मे नॉट शेयर योर विजन, मे नॉट वांट योर पेशेंस, बट दे वांट यू अराउंड. Because you are a good human being or an intelligent human being. Why are we quoting Mr. Kalam and not somebody else? Is because Mr. Kalam is not here. What's here is his patience towards science, his passion towards scientific advancements, and the people he worked with and the people he impacted. Hence, today we talk of Mr. A.P. Abdul Kalam, and people will talk about me as well, Mr. Alam, when I'm not here. They will say that Rahul sir talked about intellect has no age. So today I'm a fourth grader going to compete with a 12th grader. I'm going to win because that man said intellect has no age. मैं पढ़ के जा रहा हूँ because I have my notes ready. That's what I believe. That's my advice. And sir, as our theme is about personality development, so on that, my first question will be that, in your opinion, what are the key pillars of personality development that a young individual should focus on, right? Because as we have talked about a lot of things, right, like public speaking and the model orientation and about the intellectuality and the 3P which you taught right now, and the ID which you taught about. So each and everything, sir. So what is the the fundamental, right, on which an individual should focus on to improve its personality? Alam, if we break the concept called personality into two parts, one is you being a person and the other you being in reality. That's personal. So you being a person, Alam, amongst your friends, bindas, chilled out, जो मर्जी बात कर रहा है, and then Alam suits up, wears a tie, a nice suit, and goes for a meeting, and then the reality hits Alam. I cannot be the same person there. I have to have a personality because the other people wants to see my skill reality, right? तो दो चीजें करनी बहुत जरूरी है आलम. पहला स्किल अप. स्किल अप एक बहुत सिंपल टर्म है,
और दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है स्किल अप करना। एग्जाम्पल लेते हैं आलम, अगर मैं किसी भी 18 ईयर ओल्ड से पूछूं कि पिछले एक साल में आपने ट्वेल्थ के बोर्ड्स के अलावा किस पर्टिकुलर एक एरिया में अपने आप को इंप्रूव करना शुरू किया है, बहुत सारे लोगों का कोई आंसर होगा ही नहीं, बिकॉज वो सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे थे। हम्म, That should not be the case. You should have multiple learning responsibilities on your plate. I'll tell you an amazing thing about learning. अगर आपको कोई भी चीज सीखने में 50 दिन लग रहे हैं ना शुरू शुरू में, कुछ दिन बाद 40 लगेंगे, फिर 30, फिर 20। पता है क्यों? योर ब्रेन नाउ हैज अ मसल मेमोरी कि मेरे को लर्निंग की आदत पड़ चुकी है। तो राइट हैंड से एक डंबल उठा जिम में जाके, और फिर लेफ्ट हैंड से एक डंबल उठा जिम में जाके, लेफ्ट हैंड, अगर आप लेफ्टी नहीं हो तो लेफ्ट वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा टू गेट यूज टू द 20 kgs। राइट वाले को फील ही नहीं होगा 20 kgs फॉर अ वाइल। आपको कम कम एक्सरसाइज की क्या? मसल मेमोरी। हम मसल मेमोरी बिल्ड नहीं कर रहे हैं। मसल मेमोरी बिल्ड कर रहा है एक एथलीट फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बट मेंटली भी करना पड़ेगा, तो स्किल अप करना पड़ेगा। तो गो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आलम जी, somebody should go and find a mentor who's not a friend, who's not a family, brother, sister, cousin, no one, someone who has failed more than you have and still has come back like the phoenix rises from the ashes. This person has come back after failures and can tell you भाई ये नहीं करना, ये करना और ये करना है। That's point number one, skilling up. क्योंकि आलम, when a person walks into the room ना and somehow lights up the room, उसको हम बोलते हैं यार क्या पर्सनैलिटी है। हम्म, सच सब बोलते हैं क्या पर्सनैलिटी है। आपने उससे बात तक नहीं की भी आलम, हाय हेलो भी नहीं किया अभी तक, लेकिन वो एक दिख गया। पता है क्यों? दैट पर्सन हैज एंटर्ड सो मेनी रूम्स सो मेनी टाइम्स एट सो मेनी ओकेजन्स विद द फीलिंग कि आई एम एंटरिंग इनटू अ रूम। आप मेरे को देख रहे हो, देखो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, करो। मैं तो शायद कुछ करने भी नहीं वाला हूँ, जाके बैठ जाऊंगा, बता दूंगा। बट आई हैव डन माई बिट। वो बिट पता है क्या है? स्किलिंग अप ऑन अ डेली बेसिस। छोटा स्किल हो सकता है, 10 पेज किताब के आज पढ़ लिए, 12 नए वर्ड्स कल सीख लिए, स्किलिंग अप। दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, at a very young age one should start looking for work, paid, unpaid, whatever. For example आलम, you're working for this podcast kind of a scenario. आज तू यहाँ काम कर रहा है, तेरे को क्या पता that the moment you finish college and your podcast has real good quality going out there, तेरे को स्कूप पुप वाले फोन करके बोलेंगे आलम you are a good curator of the concept called podcasting, why don't you come and do a podcast with us as well? And कैसा ऐसा क्यों नहीं हो सकता आलम? When a 10th grader can go to a conference and another school coming from another city sees कि यार ये तो बहुत अच्छी speech थी, and the teacher calls this human being and says why don't you come to my school, and that was back when he was in 10th, and then one fine day he goes and gives a G20 speech। वो जर्नी भी तो कवर की है ना मैंने। मैं तो नहीं गया था मैम के पास, उन्होंने मेरे को देखा, और आई वॉज डूइंग माई थिंग, बट आई वॉज डूइंग इट सिंसियरली विद पेशेंस। मैं वो कर रहा था। तो ये दो चीजें अगर यूथ करना शुरू कर देना, वो पर्सन और वो रियलिटी को मिक्स कर देंगे, पर्सनैलिटी खुद सामने आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आलम की, पर्सनैलिटी जब बननी शुरू होती है तो लोगों को चाहिए होता है मुझे सब पसंद करें। आई शुड हैव अ इंडीड लाइकेबल, इंडीड, यस सर, यस सर। आई शुड इस हैव पे अ तो जरूर लाइकेबल, आपका आंसर चाहेंगे, इस पे हम जरूर आपका आंसर चाहेंगे। I should have a likable personality. भाई, you cannot be liked by everyone because not everyone is bothered. यार एक बात बता आलम, हम रांची मिले, आप मुझसे मिले, और भी लोग थे जो मिले होंगे मुझसे वहां पे। सबने तो अप्रोच नहीं किया मेरे को, बहुत लोगों ने किया आलम उसी कॉन्फ्रेंस से, बट सबने तो नहीं किया। उनके प्रोफेसर ने मुझे कहीं देखा था, उन्होंने अप्रोच किया, आपकी टीम को भेजिए, हम लोग करेंगे काम वगैरह वगैरह। तो यू नीड नॉट बी अ लाइकेबल पर्सनैलिटी, बट एक बात बोलूं, the one kind of personality you should be a very clearly approachable personality। हम्म, आप इजीली अप्रोचेबल होने चाहिए। मुझे आज भी लोग बोलते हैं कि सर डू यू रिप्लाई टू योर ओन लिंक्डइन, यू हैव अ मीडिया टीम हु टेक्स केयर ऑफ इट। मैंने कहा यार बट आई रिप्लाई टू माय ओन लिंक्डइन। अपना लिंक्डइन खोल के रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ क्या मैं अपने इंस्टाग्राम पे सारे रिप्लाई करता हूँ। अगर आलम ने मेरे को डायरेक्टली फोन कॉल किया होता, आई थिंक ये पॉडकास्ट की जो बात हुई थी, मेरे से डायरेक्टली बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, हाँ, यस यू नो। यस यस सर। मैं खुद ही रिप्लाई कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बंदा रखूं एक? भाई मेरी मैं बहुत, आई एम दैट्स हाउ आई एम। मेरे लिए सब कुछ बराबर चल रहा होता है। आई एम, मेरे को आप लाइक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स अ फ्री कंट्री, जो करना है करो, बट मैं अप्रोचेबल हूँ। आप मुझे अप्रोच हम्म, करोगे, मैं आपको रेसिप्रोकेट करके दूंगा। अगर आप वो करोगे ना, वर्क्स फॉर यू। दैट इज वेयर एवरीबडी शुड, इन चीजों का मिक्सचर ट्राई करना चाहिए सबको एक बार। क्योंकि अगर ये नहीं कर रहे हो ना डेली बेसिस, तो व्हाट आर यू एग्जैक्टली ट्राइंग टू डू? दैट्स व्हाट आई बिलीव। So, sir, yeah, it's a great teaching कि you cannot be on everyone's good book.
So you should maintain a personality where you should be approachable by each and everyone, either they like you or not. Correct. So sir, my question will be ki, how you actually balance the personal growth with this societal expectation, right? Because according to us the young generation, the society is actually a great challenge. मेरे को ठीक है। वी फील कि सोसाइटी हमें खा जाएगी अगर उसे एक पिराना का दांत दे दो तो, राइट? So how actually, or how was your past experience actually? How did you manage to get on those societal expectation, and how did you balance your personal growth and societal expectation? ठीक है आलम, आई विल बी वेरी कैंडिड विथ यू, एकदम ऑनेस्ट। हम ब्रूटली, मेरे से ना होता नहीं है, फिल्टर विल्टर नहीं है मेरा यार, अब तेरे को पता लग गया होगा अभी तक, मेरा ना फिल्टर विल्टर नहीं। मैं ना Yes. आलम बहुत एरोगेंट इंसान हूँ व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आलम, मेरे को रद्दी भर नहीं फर्क पड़ता। एंड आई टेल यू व्हाई आलम, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट। हाँ, देयर वर टाइम्स इन माय लाइफ व्हेन I was not able to convince my parents that why am I still going to these events and I'm not only doing पढ़ाई। So उनका अपना ओपिनियन आया, उनके कजिन्स का ओपिनियन आया, सोसाइटी में से लोगों का ओपिनियन आया, ऐसा मत करो वैसा मत करो, ब्ला 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 ब्ला। एंड द वन थिंग आई रियलाइज वाज, उस समय आई थिंक आई वाज इन 12th, कि my lungs are breathing for me and my heart is beating for me and I'm thinking for myself। और अगर मैं Mm, खुश ही नहीं हूं, एट द एंड ऑफ द डे इफ आई हैव टू बी इरिटेटेड एंड मेरे को करना ही नहीं है, तो फिर मैं तो अपना फुल इनपुट दे ही नहीं पा रहा हूं। तो mm, मैंने चांस दिया सोसाइटी के थॉट प्रोसेस को मुझे परेशान करने का, कि देखते हैं कब तक परेशान करते हैं। एक आध दो mm, इंसान पे बहुत परेशान हुआ, एंड देन आई रियलाइज अच्छा तो ये तो परेशान ही हो रहा हूं मैं एट द एंड ऑफ द डे, तो पॉइंट नहीं है। लेट मी डू व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, बिकॉज इफ आई डू व्हाट द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स मी टू डू एंड आई डोंट डू इट वेल, तो भी वो फालतू बोलेंगे। इफ आई डोंट डू व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू डू एंड आई डू रियली वेल इन माई लाइफ, दे विल ओनली लुक एट मी डूइंग रियली वेल इन माई लाइफ एंड नॉट कि अरे हमने तो मना किया था। ये वही वाली बात हो गई कि एक गली में क्रिकेट खेलते थे, अब इंडिया के लिए खेलते हैं, तो गली में खेलते थे तब आपने गालियां दी थी, तो वो नहीं, अब तो इंडिया के लिए खेलते हैं जी, हमारा ही लड़का है। हाँ जी। तो वही लोग हैं, देर आर फैमिली मेंबर्स who always let my parents know कि tell राहुल ये सब्जेक्ट ले ले वो सब्जेक्ट ले ले एंड आगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड टुडे there are very good positions and whenever their children, mind it, हाँ, whenever their children need to take a decision कौन सा कोर्स कॉलेज करिकुलम ले, एक बार राहुल भैया को फोन कर लेते हैं। मत करो ना फोन, क्यों? बिकॉज वो वाली बात है ना, अब तो घाट घाट का पानी पी लिया, अब हमको चंडीगढ़ में एडमिशन चाहिए या हमको सिंगापुर कॉलेज जाना है, तो ही विल बी नोइंग कि कोर्स करिकुलम कैसे काम करेगा, बिकॉज ही रन्स अ मॉड्यूल बाय द नेम ऑफ द ट्रिपल सी मॉड्यूल, कॉलेज करिकुलम एंड करियर, कैसे डिसाइड करें। एंड इट हैज वर्कड, मल्टीपल एडमिशन स्टैनफोर्ड हार्वर्ड वगैरह वगैरह, वी एडेड देम, क्यूरेटेड कैलटेक वेलटेक तक कैसे पहुंचे हैं बच्चे, इट्स मेरे टेस्टिमोनियल वीडियोस में है, इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे, हर जगह है। तो दैट इज नाउ द कॉल कम्स इन कि हेलो भैया वो ना ऐसे ऐसे पूछना था तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बताओ क्या पूछना है। एंड दैट इज वेयर आई एम कि कोई बात नहीं, यू कैनॉट बी 80-year-old अलम एंड थिंक डिड आई नॉट ट्राई दैट। मेरे से नहीं हो पाएगा mm, यार, मेरे से वो हो ही नहीं पाएगा। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दैट पार्ट ना आलम, सोसाइटी, तो जब मैं ट्रैवल करने निकलता हूं कहीं पे, तो वो भी आता है क्वेश्चन, दिसंबर में राहुल कौन जाता है विंटर ट्रैक पे, इट इज वेरी डेंजरस, यू शुड नॉट बी गोइंग इन दिस एंड दैट, एंड आर चिल्ड्रन, मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनको भी तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो मैं उनको बोलता हूँ एक काम करते हैं फिर मैम, उनको ना आप मत भेजो। mm, एंड देन घर पे कलेश कि नहीं हमको जाना है एंड ये और वो हमको करना है। तो अगर आप जा रहे हो तो जा रहे हो बिकॉज यू वांट टू सी समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, it is usually mm. after a very difficult trek and the society feels it's dangerous for your life, maybe, yes, I've seen very difficult and ghastly experiences at a trek, I mean कभी और डिस्कस करेंगे, बट हाँ उसके बाद जो नज़ारे थे वो नज़ारे थे। तो सोसाइटी का जो प्रेशर पॉइंट है ना, वो ये है कि कुछ दिन पहले ना आलम, मुझसे एक बच्चे ने पूछा सर आई एम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर कि मैं कौन सी स्ट्रीम चूज करूं, Mm. बड़ा प्रेशर आ रहा है सोसाइटी की तरफ से। तो मेरा आंसर था कौन सी सोसाइटी,
आप सुबह 4:30 5 बजे मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर रहे हो कि भैया मैं बहुत प्रेशर में हूँ, रात को सोया भी नहीं, आते हैं मेरे को टेक्स्ट ऐसे। मैंने कौन सी सोसाइटी उठी अभी? Is that person awake at 5 o'clock who pressured you to take maths or not? Is that person awake or not? नहीं है ना awake? मार गोली। Not awake ना? अगर इतनी टेंशन है सोसाइटी को, sit down and solve the problem. Don't increase the pressure. That's what my belief is. मैंने आई हैव लिव्ड दैट एंड आई विल बी लिविंग दैट एज वेल। बहुत चीजें होती हैं जो मैं बोल देता हूँ पॉडकास्ट पे, सेशंस पे, पब्लिक फोरम्स में मैं जाता हूँ। अभी आईआईटी गया था दिल्ली एक स्पीच देने के लिए, तो एक बंदे ने बोल दिया, सर आप तो इंजीनियरिंग को बोल रहे हो कि इंजीनियरिंग का कुछ खास फ्यूचर नहीं दिख रहा। मैंने कहा मैंने तो ये नहीं बोला। मैंने बोला इंजीनियर्स खुद कई अपने आप को डेवलप कर रहे हैं इनटू मोर ऑफ अ बिजनेस ओरिएंटेशन रादर देन प्योर इंजीनियर्स। क्या गलत बोला मैंने? बिल्कुल ठीक बोला है। सही बात। Everybody wants to be a shark. Everybody wants to fill up a tank. Everybody wants to go to Shark Tank. तो Indeed, sir, indeed. क्या करोगे? नहीं, सोसाइटी का प्रेशर रहेगा आलम, उसको तुम नहीं चेंज कर पाओगे, क्योंकि चेंज करने के लिए आलम दिखना भी तो चाहिए ना किसको चेंज कर रहे हो। yeah, ये तो yes. Yeah, that's the matter, sir. हाँ. कहाँ से एस्ट्रॉइड मीटरॉइड गिर रहे हैं पता ही नहीं अपने को, तो सोर्स हमको तो खाली इंपैक्ट मिल रहा है ना। तो अगर रिपल्स ही मिल रहे हैं तो भी झेल लूंगा उसको, उसमें क्या है? So, sir, my question will be कि how, suppose I'm a public speaker, right? हाँ Some ठीक है। of I'm a public speaker, कोई एक अच्छा बहुत ही अच्छा सिंगर हो सकता है, कोई एक बहुत अच्छा डांसर हो सकता है। So everyone is expert in their particular field. बहुत बच्चे, even when I'm also teaching someone or when I'm also actually mentoring someone, वो लोग ये पूछते हैं कि अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ कैसे पता करें, right? I don't know what is my weaknesses and strength, because I personally feel, sir, it is actually a very sad part of our education system that it always focuses on the in the course oriented program, right, rather than improving the skills and providing more exposure to the skills. So many of questions are there regarding this कि अपना strength और weaknesses कैसे find करें हम, what how to do the SWOT analysis actually. स्वॉट एनालिसिस, देख मैं तो बताता हूँ आलम, स्वॉट एनालिसिस मत कर। अच्छा. पहली बात, I will just want to compliment one very simple thing that you and your team, I was always appreciative of the way you guys were working. Now I like you guys a little bit more. I like you because you just said there are a lot of flaws in the education system. मैं तो upfront बोल रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम में ओवरहॉल होने की जरूरत है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है जो मैं बताऊंगा। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। आप कुछ भी कर रहे हो, सिंगर हो, डांसर हो, वगैरह वगैरह वगैरह, स्ट्रेंथ और वीकनेस हमको ढूंढना है। मेरा ना क्वेश्चन है आलम, बहुत सिंपल सा, इसका आंसर करना आलम जरूर। हाँ, क्यों ढूंढना है स्ट्रेंथ और वीकनेस आलम? टू कुछ अच्छा करने के लिए, obviously to become best of ourselves. तेरे को ही पता है, यू ऑल्सो नो आलम, आई एम जस्ट गिविंग यू आंसर सर, इसका कोई आंसर नहीं है। मैं बता, स्ट्रेंथ वीकनेस ढूंढने की नीड नहीं है। द वन थिंग दैट यू नीड टू फाइंड आलम इज नॉट टू रीच अ सैचुरेशन पॉइंट। ग्लास इतना ऊपर तक मत भर दो कि पानी पी ही ना पाओ, थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ेगा, उसको कहते हैं इंप्रूवमेंट। ठीक है? नाउ स्ट्रेंथ और वीकनेस विल ऑलवेज बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग आलम। आज तू पॉडकास्ट यहां बैठ के कर रहा है, कल किसी थिएटर में करके करेगा, किसी रिकॉर्डिंग रूम में कर रहा होगा, ये आप इंप्रूव कर रहे हो, और हो सकता है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस कई बार ऊपर नीचे हो सकती है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस ढूंढने की नीड एज सच है नहीं हम लोगों को, हमें ये ढूंढने की रिक्वायरमेंट, अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढ ली, द मोमेंट आई फाइंड माई स्ट्रेंथ आई विल बी सैचुरेटेड कि ये मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, अब मैं इंप्रूव करूं नहीं करूं क्या मतलब, क्या पता। और अगर मैंने अपनी वीकनेसेस ढूंढ ली तो मैं वीकनेस पे ही काम करने लग सकता हूं। ये सब assumptions हैं आलम, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये करना। Yes, I am good at something. Yes, I need to improve on something. Why do I say I'm good at something? Am I bad at something? No, I have certain areas I am good at. I am very strong at it. And there are certain areas I am not too good at. I am not too strong at it. I need to improve on it. बात खत्म। इसमें स्वॉट एनालिसिस एंड ये करना क्यों है? मैंने एक सिंपल सा एंगल बनाया था, एंड मेरे को ना ज्यादा इंटरनेशनलाइज करना पसंद नहीं, बिकॉज मेरे को ऐसा फील होता है इंडियन एकेडमिशियंस के भी पॉलिसीज शुड बी टेकन अप इन अदर कंट्रीज। तो मेरा ना एक सिंपल सा आजकल सिस्टम चल रहा है इसी साल से, आई एम क्रिएटिंग सर्टेन कॉन्सेप्ट्स कॉल्ड मेनिन्स लॉज। उसके दो लॉ बनाए।
दूसरा लॉ तो मैं नहीं अभी डिस्कस कर सकता बिकॉज वो अभी आउट नहीं हुआ है मेरी टीम की तरफ से। पहला डिस्कस कर सकता हूँ, इट्स कॉल्ड टाइम। इट्स कॉल्ड योर टाइम विच इज अ Mm, टास्क, योर एंड टेनेसिटी। हर टास्क को एक टाइमलाइन दे दो और उसको पूरी शिद्दत के साथ करो, एंड यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप एंड मूव टू द नेक्स्ट टास्क। जस्ट बिकॉज आप एक टास्क बहुत अच्छा कर रहे हो, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे और चेंज नहीं करोगे, तो आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो आलम। इन केस mm, समबडी रियली बटर चिकन एंड लाइक्स बटर चिकन फ्रॉम वन प्लेस इज कॉल्ड करीम्स, और मैं वहीं से ही बटर चिकन खाता रहूंगा एंड मैं कहीं और से mm. खाऊंगा ही नहीं, देन मैं आपसे कभी नहीं पूछ सकता आलम कि आलम बटर चिकन और कहाँ से खा सकते हैं, या हम सही कभी बात। हैदराबाद जाएंगे तो मैं आई एम नॉट अवेयर, आई एम अ वेरी लिमिटेड इन्फॉर्म्ड ह्यूमन। I don't want to be a limited informed human. I want to be Mm, limitless when it comes to trying new things. Hence the Menon's law. Task उसका एक टेन्योर होता है और टेनासिटी से उसको खत्म करो, so that you mm. can move to the next one. एक बात बताना, हमारे आप जब पॉडकास्ट करोगे आपके हर पॉडकास्ट का थीम सेम थोड़ी रहेगा आलम। नहीं। यू विल कीप चेंजिंग इट, यू विल हैव डिफरेंट Indeed. स्पीकर्स। माना मान लेते हैं मेरा पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग, एकदम मजा आ गया सबको, दिस एंड दैट, बट देन यू विल चेंज द स्पीकर, देन अगेन यू विल से हाँ राहुल सर एक महीने बाद वी हैव अनदर थीम व्हिच सूट्स Mm, you here, so let's do another podcast, why not? mm. But then you're changing it, right? Why? You're changing the flavor. Why? Because you want your audience to have fun. Why? Because you want your audience to start feeling familiar to your podcast, and Mm, that's where the entire game changes. yeah. So, sir, lastly, but not the least, Yeah. uh, if you could share one piece of advice with our listeners on how to Again, become the best version of yourself, right? As you said, there is nothing best and nothing worst. It's yeah. actually you are improving yourself, and Yes. but as it's our questionnaire, so I will be asking ki how our listeners can improve themselves to be the best of themselves. Done. I want everybody to listen to me very carefully. I want everyone to pay a lot of attention to a concept which I'm going to tell you. Yes, I've talked about strengths and being better and not the term weakness. And I want everybody to understand that the only way you can improve, and everybody can improve on a daily basis, is making sure that you have given yourself a constructive learning opportunity on a daily basis. If you are learning something which is constructive, commercial and conclusive in nature, आप improve कर रहे हो। भाई देखो, सबको, everybody wants to earn money, everybody Hmm. wants to be popular, everybody likes to have fame, everybody likes कि आप बाहर जाओ तो दो लोग फोटो खींच रहे हैं, आप साइन वाइन कर रहे हो, everybody likes all that माहौल, सबको अच्छा लगता है, and I love it. I love the fact that if I go to a conference, दूसरी कमेटी का डेलीगेट आके मुझे बोलता है, hi sir, I've seen you there, can I please have your अब मैं कॉन्फ्रेंस पे गया था, somebody said, can you please sign the charter for me sir, it will become very special. मैं कहा ठीक है यार, मैं कर देता हूँ तेरा charter sign वगैरह वगैरह. This happens and I'm really happy that it does, and I really work hard for it because I make sure I give myself a constructive learning pattern. I give myself a commercial learning pattern and a conclusive one. अभी मैं आजकल क्या learn कर रहा हूँ? To improve myself. I'm trying to improve my physical health. I'm trying to make Hmm. sure that मैंने एक टारगेट दिया है that I want to there's a task in the world called the Iron Man, and I also want to go to the Hmm. Mount Everest base camp. उसके लिए एक health conditioning चाहिए होती है, and because I've gone through a very critical surgery in past in my life, तो constructively मैं वो improve करना चाह रहा हूँ on a daily basis. तो मैं nutrition पढ़ता हूँ, and I study things which are based across physical health every day. And I make sure I connect with my audience every day. मेरा Instagram देखो, every single day I connect with my people. क्या करना है क्या नहीं करना है, बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, प्रेशर फील करते Indeed. हैं, मैं उनसे That's कनेक्ट कर रहा हूँ रोज। एंड कमर्शियली मैं ये चेक कर रहा हूँ, वेयर कैन आई बी यूजफुल टू मी, माई फैमिली एंड माई टीम। एंड Hmm. कंक्लूसिव मैं ये रोज कर रहा हूँ, मैं ये कॉमा करके नहीं छोड़ देता हूँ। आई हैव टू डू इट एवरी Hmm. डे। Start doing it every single day and you will start feeling as a new you every single day, because हर दिन जब मैं वो भागता हूँ और मैं एक्सरसाइज करता हूँ और एक नया क्वेश्चन आता है, आज एक क्वेश्चन आपके पॉडकास्ट के पहले मैंने डाला था, तो बड़े सारे Hmm. क्वेश्चन आ रखे हैं, मैंने आंसर ही खाली दो तीन किए हैं अभी तक, कि सर ये कैसे करेंगे, वैसे कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड टू बी ऑनेस्ट, दैट्स व्हाट फॉर मी इज कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। क्योंकि अगर मुझसे कोई Indeed. पूछता है सर ये फॉर्म कैसे भरेंगे, तो आई ऑल्सो लर्न अबाउट द फैक्ट दैट कि ऐसे करें, ये ऐसे किया जाएगा, एंड द वर्कशॉप्स दैट वी कंडक्ट, द होल आइडिया इज दैट। Indeed, sir. Sir, we loved the podcast, the whole series, and that we are talking since 7. And thank you so much.
And yeah, it was really worth it, sir. When I said the first person, when our society asked for the influencer, right, ki bring someone on the podcast, I said the only person, the first person I would like to bring on this podcast will be Rahul sir. And now I actually appreciate my own decision. Okay, why I just nominated you, and I said, okay, I will bring in Rahul sir. So first of all, thank you, sir. And if you would like to share something more to us. Alam, I think the best part was that all that we have shared today has come across through a communication Hmm. rather than सब usually podcast में क्या होता है कि सर सब कुछ सेट है Hmm. उसी पे बात करेंगे. आई लाइक द फैक्ट दैट आलम बोथ ऑफ अस एंड योर टीम वेंट हार्ट टू हार्ट. तो वो Hmm. बहुत जरूरी है. लर्निंग कभी मत छोड़ना. लर्निंग Hmm. नॉट फॉर द सेक. लर्निंग मतलब अंदर से ना ऐसे प्राउड होना चाहिए इंसान कि अरे आज 3 दिन लगा के कुछ नया लर्न किया था, आज मेरे को वो आता है और मैं किसी को Hmm. सिखा सकता हूँ. तो आई ऑलवेज लर्न Hmm. वन थिंग. लास्ट मेरा पॉइंट ये रहेगा, ऐसा पढ़ो कि सामने वाले को पढ़ा पाओ, Yeah. ऐसा Hmm. सीखो कि सामने वाले को सिखा पाओ, और ऐसा ग्रो करो कि साथ में सबको ग्रो करा पाओ. इफ इन केस यू कैन Hmm. डू दिस, बहुत मजा आने वाला लाइफ में, बहुत मजा Hmm. आने वाला. मच मोर फ्रॉम माय साइड. So, thank you for this insightful information and this amazing learning, sir. We and our we and our viewers must have enjoyed it. And when it will come on the podcast, I assure you that it will be outstanding. So, wrapping it up. So it was the another enriching episode of Eminence. A huge thank to our Rahul sir and for sharing this incredible insight and experiences with us today. So if you found something new or something valuable, please hit this subscribe button and please go and check out the social media page of Rahul sir. He is available on social media and he is continuously replying to each and every question on his through his story or his videos. So yeah, for me, and he also act as a guidance for me and much more like us. So thank you, sir. And yeah, it Thank was you. my honor. It Thank was you. my Please pleasure make having you on this sure podcast. Make sure everybody subscribe and they share Eminence. Make sure that they care for you. Yeah, So do that. thank you, sir. And Thank you, pretty much sir. all from my side. Okay, Thank you, Alam. thank you. Thank you so much. And see you guys soon. Bye bye. Indeed, sir. We will love to have an offline webinar or Done, 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 yeah, we will talk to our done. Thank team. you. Okay, thank you, sir. Thank you. He's a very Thank you so positive much. human being. He's a very And yeah, easy it person. was So I yeah, so go across this mechanism of the. Right.